What is the lower standard point and upper standard point of Kelvin scale? The upper standard point of Kelvin scale is 373 degree Kelvin, and the lower standard point of Kelvin scale is 273 degree Kelvin. Okay, done. Now, a temperature X is recorded both of the Celsius and Fahrenheit scale. What is the value of X? C by 5, we know C by 5. हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आप सबको मेरी एक न्यू ब्लॉग में स्वागत है। अभी बुब्बू का यूनिट टेस्ट एग्ज़ाम चल रहा है, तो मैं उसको प्रिपेयर कर रही हूँ। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी मैं कैसे मेरे बच्चे को एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करती हूँ, वो आप लोग के साथ शेयर करूँगी। अभी शाम का टाइम है, तो बुब्बू को मैं अभी पढ़ा रही थी, तो मैं उसको एग्ज़ाम के लिए कैसे प्रिपेयर करती हूँ, चलो देखते हैं। A fixed temperature at which a solid changes into liquid state is called dash point. Melting point. Okay. The process due to, say loudly, the process due to which a gas changes into liquid states at fixed temperature is called dash. Condensation. Okay. When a solid directly changes to gaseous state on heating without changing to the liquid state, the gaseous material so formed is called dash. Sublime. Tell loudly. Sublime. Is this answer correct or not? Yes. Sublime. The heat energy brings about the change of the dash of material body. Temperature. Okay. On the surface of Earth, dash is the prime source of energy. Sun. Good. Next. Statements given below are incorrect. Write the correct statements. The freezing point of a liquid and melting point of a solid is the same material have different numerical values. That is not different, that is same numerical values. Okay. The fixed temperature at which a solid changes in liquid state with the release of the heat energy is called melting point. Heat is a visible energy which determines the flow of energy. It is an invisible energy. 1 joule is the amount of energy required to rise the temperature of 1 gram water through 1 degree Celsius. 1 calorie. 1 calorie. Okay, next. The fossil fuels, wood and biomass are obtained from the dead plants and animals. That is called petroleum. Okay. Vaporization takes place at a fixed temperature. True. Wood is a flammable substance. True. Iodine melts on heating. False. Fixed temperature at which a solid changes into gaseous state is called vaporization. False. Wet cloths when spread in the sunshine do not dry easily. False. Okay, next. Tick the most appropriate answer. The wet cloths dry due to the process of dash. Evaporation. Okay, a small piece of copper placed in sunshine disappeared due to the process of dash. Sublimation. Good. Next. A vapor is a gaseous state of liquid. Below its boiling point. Below the boiling point of liquid. Okay. सीधे होके बैठो. When calcium carbonate is heated, it changes to calcium oxide and carbon dioxide. The changes brought about by the heat energy is Chemical change. Chemical change. Chemical change. Yes. Which will undergo sublimation? Sublimation. Options. Ammonium chloride, copper, sodium chloride and iodine. All of the above. No, sodium chloride is the right answer. Not undergo. Okay.
बच्चों को जब एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना होता है तो मैं क्या करती हूँ, उसका जो टेस्ट होता है उस हिसाब से उसका पोर्शन अलग अलग होता है। जैसे इस अभी उसका सेकेंड यूनिट टेस्ट चल रहा है तो उसका पोर्शन क्या है वो पहले मैं चेक करती हूँ। तो पहले चलो चेक करते हैं उसका पोर्शन क्या है। आज उसका फिजिक्स ही है तो फिजिक्स का पोर्शन मैं पहले चेक करती हूँ। ये जो यूनिट टेस्ट पोर्शन, ये सब पोर्शन सर या मैम वो जो स्कूल का होता है वेबसाइट उसमें देते हैं। यूनिट टेस्ट पोर्शन या हाफ ईयरली पोर्शन, एनुअल पोर्शन, ये पोर्शन उधर सेंड करते हैं। तो उस पोर्शन के हिसाब से अभी इसका जो फिजिक्स का है, हीट का है चैप्टर, उसका हीट पर उसका 3 यूनिट्स है, उसमें 4 यूनिट्स है तो इसमें से 3 यूनिट्स आएंगे। यूनिट 1 heat energy and its general effects. Next, unit 2 temperature and its measurement. Then unit 4 transmission or of heat. Okay, तो मैं इसको पहले पूछती हूँ कि ये जो क्वेश्चन आंसर इसका राइटिंग किया है या नहीं। बच्चों का तो अभी ऑनलाइन क्लास चल रहा है तो सब ये सब चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं पहले चेक करती हूँ इसने पूरा होमवर्क किया है या नहीं, या जो क्वेश्चन आंसर पूरा कंप्लीट किया है नहीं। तो चलो देखते हैं क्या है या नहीं। तो ये देखिए इसने हीट एनर्जी का जो चैप्टर है उसका सारे क्वेश्चन आंसर कर लिया है। तो जब क्वेश्चन आंसर कर लिया, फर्स्ट मैं बोलती हूँ कि उसको चैप्टर रीड करने के लिए, एग्ज़ाम से पहले उसको अच्छे से चैप्टर रीड करने के लिए बोलती हूँ। फिर इसके बाद जो उसका लॉन्ग क्वेश्चन होता है उसको लर्न करने के लिए मैं बोलती हूँ। ये लॉन्ग क्वेश्चन जब लर्न हो जाता फिर मैं उसको ये क्वेश्चंस प्रोवाइड करती हूँ और वो आंसर लर्न करके अपने माइंड से ही लिखता है। और ये नोट में रखती हूँ अलग से, और वो लर्न करने के बाद आंसर को अलग से लिख के मुझे दिखाता है। ये क्वेश्चन मैं उसको प्रोवाइड करती हूँ। नेक्स्ट जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो शॉर्ट क्वेश्चन में उसके सामने बैठ के उसको ओरली पूछती हूँ और वो मुझे आंसर करता है। तो ऐसे में मेरे बच्चे को प्रिपेयर करती हूँ उसका एग्जामिनेशन के लिए, हाफ ईयरली हो या यूनिट टेस्ट हो, एनुअल टेस्ट हो, हर तरफ एग्ज़ाम के लिए मैं ऐसे ही प्रिपेयर करती हूँ। ये यूनिट टेस्ट पोर्शन ये ख़त्म हो गया। नेक्स्ट आएगा उसका एनुअल एग्ज़ाम का। तो एनुअल एग्ज़ाम में क्या क्या पोर्शन आएगा पहले वो मैं देखूँगी, फिर ऐसे ही उसको प्रिपेयर कराऊँगी। तो आ गई हूँ मैं किचन में। अभी बच्चों के लिए बनाऊंगी रोटी। हस्बैंड ने सब्जी बना दी थी, मैं जब बच्चों को पढ़ा रही थी। उनका ड्यूटी अभी सुबह मॉर्निंग में था तो उन्होंने सब्जी बना दिया था, मैं अभी रोटी बना रही हूँ। रोटी बन रही है और देखते हैं हस्बैंड कैसे सब्जी बनाए हैं। 7 से 9 बजे तक मैं बच्चों को पढ़ाने के लिए उधर चली गई। तो इधर देखिए हस्बैंड क्या रोटी बनाए, सब्जी बनाए। वाह, ग्रेवी बनाए हैं किसका, पनीर का ग्रेवी बनाए हैं। रोटी में हम बहुत सारा ग्रेवी खाते हैं ना, इसलिए बहुत सारा ग्रेवी बनाया है। थोड़ा सा पानी ज़्यादा रख के, खुशबू बहुत अच्छा आ रहा है। मैं रोटी बना लूँ फिर हम करेंगे डिनर। ये हो गया, अभी इसको ढक के रखेंगे, ठंडा हो जाएगा। रोटी और थोड़े बच्चे हैं। देखिए आज भी पटाखे फटा रहे हैं कलिंग स्टेडियम में। शायद उसका फाइनल मैच या कुछ होगा, मुझे तो उसकी कॉज पता नहीं है, पर कितने सारे पटाखे फटा रहे हैं। अभी थोड़ा बंद हो गया, मैं कब से खाना बना रही थी तब से फटा रहे थे। रोटी बन के तैयार हो गया है, अब घर को झाड़ू करेंगे फिर खाना लगाएंगे।
मैं इधर झाड़ू करने लगी हूँ और बच्चे हस्बैंड के साथ कुछ बातें कर रहे थे। उनके पापा उनको समझा रहे थे कि कैसे पढ़ाई अच्छा करना है और पापा का गाइडेंस मिलता तो अच्छे होते हैं। वो पापा को ज़्यादा मानते हैं। तो हो गया ये। तो अभी हम कर रहे हैं डिनर। ये हमारे रोटी तैयार हो गए हैं देखो, और सब्जी भी। और कृष्णा, बुबू और मेरे हस्बैंड तीनों खा रहे हैं। कृष्णा इधर बैठा है, उसको मैं खिलाऊंगी और मैं इसमें खाऊंगी। तो हो गया हमारा डिनर। जीरा राइस भी बना दिया क्या? वो हस्बैंड और बड़ा वाला लड़का खा रहे हैं। कृष्णा बैठ के मोबाइल देख रहा था और उसको मैं खिलाऊंगी। वो हाथ से खाना पसंद नहीं करता, तो एक अच्छा सा पिक्चर लगा के वो दोनों बैठ के खा रहे हैं और हम लोग पिक्चर देख देख के सब मिल के एक साथ में करेंगे डिनर। और रोटी, पनीर की सब्ज़ी और सुबह का थोड़े चावल था तो हस्बैंड ने उसको जीरा राइस बना दिया। थोड़े से जीरा का तड़का लगा दिया, जीरा और हरी मिर्च का, तो ये टेस्टी लगता है। तो आज का वीडियो यही था कि मैं बच्चों को कैसे प्रिपेयर करती हूँ। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा, आपको कुछ जानने के लिए मिला होगा। जिस मॉम उसके बच्चे को प्रिपेयर करते हैं उनको कुछ मिला होगा, और जो इससे बेहतर तरीके से उनके बच्चे को प्रिपेयर करते हैं वो भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं मैं, और कैसे अच्छे तरीके से मेरे बच्चे को प्रिपेयर कर सकती हूँ। तो आज का ब्लॉग को यहाँ रखते हैं। मिलते हैं आप लोग के साथ और एक ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय।